स्वागत है आप सभी का इस बुलेटिन में। राजनाथ सिंह ने अग्निपथ स्कीम का ऐलान किया। जो बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, राजनाथ सिंह ने अग्निपथ स्कीम का ऐलान किया। शॉर्ट टर्म के लिए होगी सेना में बहाली। तो बड़ी खबर इस वक्त, राजनाथ सिंह ने अग्निपथ स्कीम का ऐलान किया। शॉर्ट टर्म के लिए होगी सेना में बहाली। तीनों सेनाओं में 4 साल के लिए होगी भर्ती। अग्निपथ योजना से रोजगार बढ़ेगा। तो अग्निपथ योजना से रोजगार बढ़ेगा। राजनाथ सिंह इस तरह के दावे कर रहे हैं। 4 साल के लिए सेना में भर्ती करने का ये स्कीम है। और अग्निपथ स्कीम को लेकर क्या कुछ मीडिया से बातें शेयर की जा रही हैं, सीधे आपको लेकर वहीं चलते हैं। That is reduction of average age from 32 to 26 to be achieved over a period of time. Secondly, increase in the technical threshold of the Army by recruiting Agniveers through ITIs and other technical institutes by harnessing their potential. The scheme, we believe, will attract young talent and motivated youth with the right skill sets to join the Army. It will also result in increased availability of medically and physically fit personnel at the cutting edge level of field units. It will also ensure better utilization of recruit training period, resulting in enhanced availability of soldiers to the field army. It will also help us in maintaining an optimum balance between the youth and experience. A wider recruitment base will provide equal opportunities to youth from all parts of the country to join the Army. The screening and selection, based on a sound, fair, transparent, and a robust assessment system, will ensure that the Army retains the best of the best for a longer serving duration, and these personnel will form the core of our organization. The Agniveer, leaving after 4 years, will be empowered with suitable skills and financial means and carry a unique resume, as was alluded to earlier, that will significantly enhance his value and employability in the civil society. The new process heralds a paradigm shift in our recruitment process and will necessitate changes in the way we impart training to our recruits and soldiers in enhancing their combat potential. मैं सभी को आश्वस्त करना चाहता हूं कि रिक्रूट्स के लिए लागू मिनिमम फिजिकल, मेडिकल और प्रोफेशनल पैरामीटर्स को सुनिश्चित करने के लिए हमारे द्वारा अपनाए गए मापदंडों पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा. We will institute a fair, transparent and scientific method in screening the initial intake for 4 years and apply similar yardsticks to select those who will get enrolled. मैं इस बात पर भी जोर देना चाहता हूं कि थल सेना अपने गौरवशाली विरासत, इतिहास, परंपरा, सैनिक मूल्यों और संस्कृति, जो कि कोहेसिवनेस, कामरेडरी, एस्पिरिट डेकोर और नाम, नमक और निशान के मूलभूत सिद्धांतों पर आधारित है, को पूरी तरह बरकरार रखेगी. अग्निवीरों को आर्मी में हर तरह से एसिमिलेट और इंटीग्रेट किया जाएगा और वो यूनिट्स, हेडक्वार्टर्स और एस्टेब्लिशमेंट्स दोनों ऑपरेशनल और नॉन ऑपरेशनल एरियाज में भारतीय सेना के विभिन्न अंगों यानी कि अलग अलग आर्म्स और सर्विसेज में तैनात किए जाएंगे. I want to assure you that during the implementation and stabilization phase of the Agnipath scheme, the Army's operational capabilities and preparedness along the borders
and the ability to deal with internal security challenges will be fully maintained. At the end, I wish to say that we are confident that this change will bring in new vigor and confidence in the Indian Army and make it stronger, more capable, and in stride with the future. Jai Hind and thank you. मित्रों, हमारे तीनों सर्विसेज के चीफ्स और हमारे एडिशनल सेक्रेटरी डीएमए ने जो प्रेजेंटेशन आपके सामने दिया है, मैं समझता हूं थिंग्स आर क्रिस्टल क्लियर, चीजें पूरी तरह से साफ हैं। लेकिन फिर भी यदि कोई क्लैरिफिकेशन आप चाहते हैं तो हमारे तीनों सर्विसेज के चीफ्स आपके क्लैरिफिकेशन का जवाब देंगे। So I'm Rahul Singh from Hindustan Times. My question is to the Army Chief. So this scheme has been at the center of an intense debate in the recent months, with a lot of people pointing out the advantages and the disadvantages. Now, one thing which a lot of veterans have pointed out is that this Agnipath scheme, or the All India All Class recruitment model, will strike at the very foundation of the regimentation system, which is time-tested and has worked very well for us. So do you see any kind of issues related to morale, cohesion, or discipline with the introduction of these schemes? Right. Let me start by mentioning that Indian Army is largely all India, all class. Even today, 75% of our units already have an all India, all class composition. A limited number of units are based on class composition. Also, I must mention that the regimental system and class composition, though interlinked, are two different concepts. We need to understand that the basic aim of recruiting Agniveers on an all India, all class basis is to widen the recruitment base and provide equal opportunity to youth of the country, across the country, to serve the nation. Regimentation, I feel, is dealing from this endeavor. We will continue to draw strength from the bonds of esprit de corps and team spirit, which are generated through living, training, and fighting together, irrespective of the class or caste of the comrades in arms. I believe our regimental system will evolve with a greater national pan-India character. Gradually, the class-based character of certain units and regiments that have a fixed composition today is expected to evolve into an all-India, all-class structure in the future. The Indian Army has a rich history, tradition, military values, and culture based on the principles of cohesive and camaraderie, and I believe this will not change. As I mentioned in my opening statement, the Agniveers will be fully assimilated and integrated into the organization, ready for deployment based on the operational requirements. Our organizational ethos and culture, we are convinced, will motivate the Agniveers to imbibe the military values and regimental spirit. Thank you. 124. हाय मॉर्निंग सर, मेरा नाम आशीष है, मैं TV9 से हूँ। मेरा क्वेश्चन एडमिरल हरि कुमार से है कि सर, ये शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए अग्निपथ स्कीम के अंडर में जब लोगों को डिप्लॉय किया जाएगा, स्पेसिफिकली चाहे वो शिप्स हो या फिर ऑफशोर यूनिट्स हो, तो वहाँ पर भी जो यूनिट्स ऑलरेडी डिप्लॉयड हैं, जो मेन एंड वुमेन डिप्लॉयड हैं, तो उन्हें उनके मोरल और उनके मोटिवेशन पे ये फर्क नहीं पड़ेगा कि मेरे साथ में जो है या फिर जो कुछ लोग हैं वो केवल कुछ महीने या कुछ साल के लिए है, तो उसके मैनेजमेंट के लिए क्या कुछ सोचा गया है स्पेसिफिकली शिप जैसे एक प्लेटफॉर्म के लिए? देखिए, हमारी ओपिनियन में
ये इट विल ओनली इम्पैक्ट पॉजिटिवली। एज सच नेवी में जो है ये पर्सनल जो शिप्स में जाते हैं, यूनिट्स में जाते हैं, उनको हर 2 साल या 3 साल में उनको रोटेट करते हैं। मतलब वो 2 साल एक शिप में है, फिर या दूसरे शिप में जाते हैं या एशोर आ जाते हैं। तो दिस अ मैंडेटरी रिक्वायरमेंट ताकि उनको ब्रेक मिल जाता है फ्रॉम दी शिप टेन्योर। तो ये रोटेशन हर व्यक्ति का होता है। तो इसलिए दी यूनिट कोहेशन जो आप बात करते हैं, इट इज नॉट डिपेंडिंग अपॉन दी longevity in a unit or the amount of time that is spent in a unit. It is more related to the type of training, the type of leadership, the type of challenges that you face together that leads to the bonding within the ship, and that is what translates into morale. So as in the Navy we have something called a divisional system. तो ये divisional system जो है इसमें there is a team of about 11 personnel are form a division, and in that there is it is headed by a divisional senior sailor and a divisional officer. So they look after them both professionally as well as personally. You know, they know them well, and the interaction happens almost 24/7 whenever they are in their action post or when they are doing partnership work and so on. So this is a time-tested system, and which helps to bring in the new Agniveer into the ship and help him to integrate and assimilate well. So therefore we don't see any problem or any difficulty in inducting them into the combat platforms. Thank you. 63. Sir, I am Shivani Sharma from Times Now Nav Bharat, and my question is for the Army Chief. There have been a lot of... तो सेना भर्ती के लिए अग्निपथ स्कीम जारी कर दिया गया है। क्या इसके अंदर खूबियां रहेंगी? जो कुछ थोड़े बहुत जो सवाल पूछे जा सकते थे मीडिया की तरफ से पूछे जा रहे हैं, जिसका कि जवाब अधिकारियों की तरफ से दिया जा रहा है। चलिए बढ़ते हैं आगे। प्रयागराज के अटाला इलाके में शुक्रवार को हुई हिंसा के बाद हालात को सामान्य बनाने के लिए प्रशासन अपनी कोशिशों में पूरी तरह से जुट गया है। आज एसएसपी और डीएम हिंसा वाले क्षेत्र में पहुंचे और जिन गलियों से उपद्रव और पथराव किया गया था, उन गलियों का डीएम और एसएसपी ने निरीक्षण कर लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए एसएसपी अजय कुमार ने कहा, पूरे घटनाक्रम में जो भी उपद्रवी चिन्हित हैं, उनको किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। उनकी गिरफ्तारी से लेकर सभी प्रभावी कार्रवाई की जाएगी। तो प्रयागराज की खबर, जहां पर उपद्रवी को किसी हाल में बख्शा नहीं जाएगा, सीधे तौर पर प्रशासन की तरफ से चेतावनी दी गई है और हिंसा वाले इलाकों का बाकायदा निरीक्षण किया जा रहा है और वैसे तमाम लोगों को चिन्हित किया गया है जो इस हिंसा में शामिल हुए थे। सभी कम्युनिटी के लोग हमारे भाई बंधु हैं, मित्र हैं। मुकदमा दर्ज है, 70 नामजद हैं, कुछ अज्ञात हैं। उन्हीं की गिरफ्तारी हो रही है या की जाएगी जो वास्तव में शामिल हैं और जो हार्ड क्रिमिनल्स हैं। ऐसे लोग जिनको उकसाया गया, नाबालिग हैं, उन पे हम विचार करेंगे। अगर वो खराब प्रवृत्ति के नहीं होंगे तो उन पे ध्यान दिया जाएगा, विचार किया जाएगा, निर्णय लिया जाएगा। लेकिन गिरफ्तारियां हार्ड कोर क्रिमिनल्स की होंगी जिन्होंने साजिश रचा है। और चलिए इस पूरे मामले पर और भी अपडेट के लिए चलते हैं अपने सहयोगी शोएब रिजवी के पास चलते हैं। शोएब, क्या कुछ और जानकारी इसमें मिल रही है? प्रशासन किस तरफ से बाकायदा सख्ती बरत रहा है और कितना असर दिख रहा है इसका? बिल्कुल, अगर असर की बात करें तो जिस इलाके में घटना हुई थी वो पूरी तरीके से एक तरह से बंद है। उस इलाके का जो व्यापारिक गतिविधियां हैं वो पूरी तरीके से बंद है। पूरे इलाके में पुलिस छावनी बनी हुई है। आवागमन जो उस इलाके का है वो ना के बराबर है। बहुत ज़रूरी काम के लिए जो लोग निकल रहे हैं उन्हें आने जाने दिया जा रहा है। हर इंसान से पूछताछ की जा रही है और आला अधिकारी लगातार उस इलाके में भ्रमण कर रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ अब जो पुलिस की कोशिश ये है कि इस चीज़ को समान किया जाए, तो उसके लिए वो लगातार लोगों से संवाद बनाने की भी अब कोशिश फिर शुरू हो गई है। जैसे कि
इस घटना के पूर्व में भी जैसा एसएसपी ने बताया है कि उन्होंने संवाद बनाने की कोशिश की थी, उस सिलसिले को फिर शुरू किया जा रहा है। और ये जरूर है मगर कि इसमें सख्त संदेश भी है कि जो लोग भी इस तरह की अराजकता में शामिल होंगे उन्हें बख्शा नहीं जाएगा, और जो लोग शामिल थे उनकी तलाश करके उन्हें सजा जरूर दिलाई जाएगी। हाँ, इतना जरूर है कि इस बीच में ये सवाल जरूर उठने लगे थे कि कुछ ऐसे लोग भी पुलिस की जद में आ गए हैं जो शायद इस घटना से सीधे तौर पर नहीं जुड़े हुए थे, ऐसा उनकी तरफ से कहा गया। तो उधर एसएसपी ने ये बात भी अब लोगों तक पहुंचाई है कि पूरी कोशिश होगी कि किसी के साथ नाइंसाफी न हो, सबको इंसाफ मिले, और चिन्हित करने की जो प्रक्रिया है उसमें किसी तरह की कोताही नहीं बरती जाएगी। एविडेंस के आधार पर ही लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा। जो लोग गलत तरीके से अगर किसी वजह से पुलिस की गिरफ्त में आए हैं तो उस पर विचार भी किया जाएगा। लेकिन इतना जरूर है कि उन्होंने संदेश जरूर दिया है कि जिन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया है उसके पीछे के जो लोग हैं उनको छोड़ा भी नहीं जाएगा, उनकी तलाश की जा रही, सीसीटीवी कैमरे के जरिए उनकी चिन्हित किया जा रहा है। तो इस तरह की चीजें जरूर हो रही हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम आपको एक अपडेट भी बता दें कि जो लोग करीब 70 के करीब जो लोग जेल भेजे गए हैं उसमें कुछ लोगों ने निचली अदालत में जमानत के लिए याचिका भी दाखिल की थी, जिसको कोर्ट ने फिलहाल खारिज कर दिया। तो कह सकते हैं कि जो न्यायिक प्रक्रिया है वो भी शुरू हो चुकी है। चूंकि पहले जो लोग गिरफ्तार हुए थे 70 के करीब उनको नैनी सेंट्रल जेल भेजा जा चुका, जिसमें 4 नाबालिग थे जिन्हें बाल सुधार गृह भेजा गया है। तो उनकी तरफ से जो उनके वकील हैं उन्होंने उनकी छुड़वाने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। हालांकि पहली कोशिश जो हुई है करीब 4 से 5 जो जेल भेजे गए आरोपी हैं उनकी तरफ से जो याचिका दी गई थी उसको भी खारिज कर दिया और उन्हें राहत कोर्ट की तरफ से निचली अदालत की तरफ से फिलहाल नहीं मिला। चलिए शोएब, खबर पर आप नज़र बनाए रखेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। तो हिंसा वाले इलाके में प्रयागराज की खबर है जहां पर डीएम और एसपी ने दौरा किया और सीधे तौर पर उन्होंने लोगों से शांति की अपील की और कहा कि अगर आगे भी किसी तरह का अगर कोई उपद्रव करने की कोशिश करता है तो उसे बख्शा नहीं जाएगा, और जिन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है, जिन लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है उन्हें सख्त से सख्त सजा मिलेगी। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी की ओर से लगातार राहुल गांधी से पूछताछ हो रही है। इसके विरोध में कांग्रेस पार्टी ने आज पटना में सदाकत आश्रम स्थित कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में मौन धरना दिया। इस दौरान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा समेत कई नेता भी मौजूद रहे। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा का कहना है कि ईडी भारतीय जनता पार्टी के दबाव में काम कर रही है। पुराने मामले में राहुल गांधी को फंसाने की कोशिश की जा रही है और बेवजह परेशान किया जा रहा है। तो राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ हो रही है नेशनल हेराल्ड के मामले में, और पटना में इसका विरोध कांग्रेस के नेताओं की तरफ से देखने को मिला। पटना के सदाकत आश्रम में, जो कि प्रदेश कार्यालय है कांग्रेस पार्टी का, वहां पर बाकायदा प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से कांग्रेस के कई नेता इस विरोध प्रदर्शन में शामिल होते नजर आए। तो सदाकत आश्रम में कांग्रेस का मौन प्रदर्शन चला। बीजेपी के दबाव में काम कर रही है ईडी, इस तरह के आरोप कांग्रेस पार्टी की तरफ से लगाए गए। पूरे देश भर में कांग्रेस के नेताओं का प्रदर्शन हुआ था और चलिए बढ़ते हैं आगे। बिहार के बाहुबली विधायक अनंत सिंह को झटका लगा। AK-47 मामले में आरजेडी विधायक अनंत सिंह को MP MLA कोर्ट ने दोषी पाया है। अब 21 जून को अनंत सिंह को सजा सुनाई जाएगी। आपको बता दें कि ये मामला साल 2019 का है, जब अनंत सिंह के घर पर छापेमारी हुई थी। तब बाढ़ की तत्कालीन ASP लिपि सिंह के नेतृत्व में पुलिस ने अनंत सिंह के नदमा गांव स्थित घर पर छापेमारी की थी। करीब 11 घंटे तक चले सर्च ऑपरेशन में अनंत सिंह के घर से AK-47 के साथ ही हैंड ग्रेनेड, 26 राउंड गोली और एक मैगजीन भी बरामद की गई थी। तो बाहुबली विधायक अनंत सिंह को झटका लगा है। आरजेडी विधायक अनंत सिंह दोषी पाए गए हैं और AK-47 मामले में दोषी उनको करार दिया गया है। 21 जून को सजा का ऐलान किया जाना है। तो आरजेडी के विधायक अनंत सिंह को AK-47 के मामले में
एमपी एमएलए कोर्ट से झटका मिला है, उन्हें दोषी पाया गया है और अब 21 जून को सजा का ऐलान किया जाएगा। चलिए बढ़ते आगे। गुजरात के अहमदाबाद शहर में सालों की परंपरा भगवान जगन्नाथ की 145वीं रथ यात्रा 1 जुलाई को अहमदाबाद शहर में निकलेगी। भगवान जगन्नाथ मंदिर प्रबंधन ने इस रथ यात्रा की तैयारियां शुरू कर दी हैं। गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी, पूर्व उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल और पूर्व गृह राज्य मंत्री प्रदीप सिंह जडेजा साथ जाकर शहर की साबरमती नदी के बीच से पानी भरा गया है। साबरमती नदी के तट पर मंदिर के महाराज और पूर्व गृह मंत्री हर्ष सांघवी सहित नेताओं ने गंगा पूजा की। फिर कलश में साबरमती नदी के मध्य भाग से पानी भरा गया। इस जल को भरने के बाद तीर्थयात्री मंदिर लौट आए। इसके बाद इस जल से भगवान का अभिषेक किया जाएगा। पूजन के बाद भगवान गजवेश को पहनाया जाएगा। 108 कलश में मंदिर में पानी लाया जाएगा और षोडशोपचार पूजा की जाएगी। जगन्नाथ मंदिर से भगवान अपने मोसाले में पहुंचेंगे, जहां वे 15 दिनों तक रहेंगे। तो भगवान जगन्नाथ की 145वीं रथ यात्रा की तैयारी शुरू हो चुकी है। 1 जुलाई को अहमदाबाद से निकलेगी रथ यात्रा। गृह राज्य मंत्री ने साबरमती नदी से भरा पानी, इसके बाद इस पानी को भरे जाने के बाद से पूरी प्रक्रिया शुरू हो जाती है और 1 जुलाई को अहमदाबाद शहर से भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकलेगी। वहीं उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। दरअसल भारत सरकार 10 लाख लोगों को रोजगार देने जा रही है। इसमें अलग अलग कैटेगरी और योजनाओं से लोगों को रोजगार मिलेगा। इस पर मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जो कहते हैं वही करते हैं। मुख्यमंत्री धामी ने आज पेश होने वाले बजट पर भी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि आज पेश होने वाला बजट जन उपयोगी और सभी वर्गों का ख्याल रखने वाला होगा। बजट के लिए सभी तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं और आज शाम 4 बजे बजट पेश किया जाएगा। स्किल डेवलपमेंट का डिपार्टमेंट बनाया गया था और उस स्किल डेवलपमेंट के डिपार्टमेंट ने काम करना शुरू किया था। आज उन्होंने 10 लाख लोगों के रोजगार के सृजन की बात कही है, 10 लाख लोगों को रोजगार देने की बात कही है। जो मोदी जी कहते हैं वो करते हैं, इसलिए सब नौजवानों को जल्दी ही रोजगार मिलेगा। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का दिल से, हृदय की गहराइयों से उनका धन्यवाद करता हूं। मथुरा के थाना कोसी कला में सीएनजी पंप के पीछे गोदाम में अचानक किन्हीं वजह से आग लग गई और आग की लपटें आसमान को छूने लगी। आग की लपटों को देखकर स्थानीय लोगों में हाहाकार मच गया। तो वहीं सूचना मिलने पर मौके पर दमकल विभाग की 2 गाड़ियां पहुंची और आग बुझाने में जुट गई। तो वहीं तकरीबन 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर किसी तरह से काबू पाया जा सका है। रिहायशी इलाकों से चूँकि इस सीएनजी पंप के जस्ट ठीक पीछे जो गोदाम बना हुआ था, इस गोदाम में आग लगी। रिहायशी इलाकों से दूर था ये गोदाम, इसलिए बड़ी घटना नहीं हो सकी। लेकिन अगर ये रिहायशी इलाके में अगर एक गोदाम हुआ होता तो समझ सकते हैं, अंदाज़ा लगाइए कितनी बड़ी क्षति हो सकती थी, कितना बड़ा हादसा हो सकता था। चलिए इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया वॉइस।